میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں. اس کے بعد یہ میس اکیڈمی IIT نیٹ اکیڈمی کا بے حد ممنون و مشکور ہوں. ایسے تو شہر میں بہت سارے ادارے ہیں جہاں بچوں کو خرچ کر کے جو تعلیم دلائی جاتی، اس کے باوجود بھی بچوں پہ کوئی محنت نہیں کی جاتی. بچے ہمارے جو ہے اپنا فیوچر برباد کر لیتے. اس اکیڈمی میں نہ صرف بچوں کا فیوچر بنتا ہے بلکہ ان کی دینی تعلیم تربیت بھی ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے MS اکیڈمی قابل مبارکباد ہے. For more details, please visit our website. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سابق صدر PCC و سابق وزیر ڈی سرینیواس کو بھرپور خراج پیش کیا جو کل چل بسے تھے. انہوں نے ڈی سرینیواس کی نعش پر پھول چڑھائے اور ان کے غمزدہ ارکان خاندان کو پرسہ بھی دیا. سکندرآباد کنٹونمنٹ بورڈ کو جلد ہی GHMC میں ضم کر دیا جائے گا. اس سلسلے میں مرکزی حکومت کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کنٹونمنٹ بورڈ کو GHMC میں ضم کرنے کی خصوصی پہل کی. انہوں نے دورہ دہلی کے موقع پر وزیر دفاع سے ملاقات کی تھی اور اس مسئلے کو اٹھایا تھا، جس پر مرکزی حکومت نے برطانوی دور سے چل رہے تمام کنٹونمنٹ بورڈز کو منسوخ کر کے بلدیات میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. T20 ورلڈ کپ میں ہندوستانی ٹیم کی کامیابی پر شہر حیدرآباد میں جشن منایا گیا. ہزاروں افراد سڑکوں پر ترنگا تھامے نکل پڑے، جنہوں نے جشن منایا، پٹاخے چھوڑے اور مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. T20 ورلڈ کپ فائنل میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی سوریا کی جانب سے لیا گیا کیچ میچ کا اہم موڑ ثابت ہوا. انہوں نے سرکردہ کھلاڑی ڈیوڈ ملر کا کیچ لیا. ان کے کیچ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس کی تمام گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے. روہت شرما کے T20 فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کے اعلان پر ہندوستانی ٹیم کے کوچ راہل ڈراوڈ نے کہا کہ وہ ان کی کمی کو محسوس کریں گے. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کے انسان روہت شرما ہیں وہ متاثر کن شخصیت ہیں. روہت شرما کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی. وزیر اعظم مودی نے T20 ورلڈ کپ میں کامیابی پر ہندوستانی ٹیم کو مبارکباد پیش کی. کپتان روہت شرما کو فون کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ان کی شخصیت کمال کی ہے. ان کی بیٹنگ اور کپتانی نے ہندوستانی ٹیم کو نئی جہت دی ہے. کشمیر کے رکن پارلیمنٹ روح اللہ مہدی نے بیرسٹر اسد الدین اویسی MP و صدر مجلس کی تائید کی ہے. انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جے فلسطین کہنا کوئی جرم نہیں ہے، میں بھی فلسطین زندہ باد کہتا ہوں. تروپتی میں رکن پارلیمنٹ متھن ریڈی کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا. وہ اپنے حامیوں کے ساتھ اجلاس منعقد کرنے والے تھے، تاہم ان کو اس کی اجازت نہیں دی گئی. پولیس کا ماننا تھا کہ ان کے پنگنور کے دورے سے علاقے میں کشیدگی پھیلے گی. بس کے سامنے جانے والی کار کو ہٹنے کے لیے ہارن مارنے والے RTC بس کے ڈرائیور پر حملہ کیا گیا. یہ واقعہ ضلع کرشنا کے گوڈی واڑہ میں پیش آیا. اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی. ویڈیو میں دکھایا گیا کہ کار کو روکنے پر بعض افراد کار سے اتر کر اس ڈرائیور کو نشانہ بنا رہے ہیں.
اس واقعے پر RTC ملازمین کی یونین نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے شکایت کے باوجود حملہ کو گرفتار نہیں کیا ہے۔ جوبلی ہلز میں ایک کلب کی کل شب پولیس نے تلاشی لی۔ ذرائع کے مطابق پولیس کے ساتھ اس موقع پر خصوصی طور پر تربیت یافتہ بھومی کتا بھی تھا، جس کو منشیات کی نشاندہی کے لیے خصوصی طور پر تربیت دی گئی تھی۔ اس کتے کے ذریعے کلب کی مکمل تلاشی لی گئی، تاہم پولیس کو کوئی بھی نشیلی شے نہیں ملی۔ ڈی سی پی راجندر نگر زون کی ہدایت پر اتاپور پولیس اسٹیشن کی حدود کے مختلف علاقوں جلال بابا نگر، بھوپال نگر اور دیگر علاقوں میں پولیس نے کل شب تلاشی مہم چلائی۔ شہر میں جرائم کی وارداتوں کو روکنے کے لیے اس طرح کی مہم چلائی جا رہی ہے، جس کا مقصد عوامی مقامات پر شراب کے استعمال، جوئے خانوں اور غیر سماجی سرگرمیوں کو روکنا ہے۔ محکمہ جنگلات کے عہدیداروں نے ضلع نندیال کے قریب پاچرلا علاقے میں ایک تیندوے کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس تیندوے نے ایک خاتون کو ہلاک کر دیا تھا اور دوسری خاتون کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ اس تیندوے کی موجودگی سے مقامی افراد میں خوف دیکھا جا رہا تھا، جو راتوں کو اپنے گھروں سے نکلنے میں ڈر محسوس کر رہے تھے۔ ان مقامی افراد نے اس بات کی شکایت محکمہ جنگلات کے عہدیداروں سے کی، جنہوں نے اس کو پکڑنے کے لیے اقدامات کیے۔ ضلع بھدرادری کوتاگوڑم کے الاندو قصبے میں کانگریس پارٹی قائدین کے درمیان اختلاف منظر عام پر آیا۔ MLA کی موجودگی میں ہاتھا پائی کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق الاندو میں میونسپل کونسل کا اجلاس ہوا، جس میں میونسپل چیئرمین ڈی وینکٹیشور راؤ اور وائس چیئرمین جانی پاشا کے درمیان بحث و تکرار ہوئی۔ میونسپل عملے کو احتجاج کے باوجود تنخواہیں ادا نہ کرنے پر سوال اٹھانے پر چیئرمین اور وائس چیئرمین کے درمیان جھگڑا ہوا اور MLA کورام کنکیا کی موجودگی میں ہی چیئرمین نے وائس چیئرمین جانی پاشا پر ہاتھ اٹھایا۔ جنرل اپیندر دویدی نے فوج کے سربراہ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ قومی دارالحکومت دہلی میں جنرل اپیندر دویدی نے جنرل منوج پانڈے سے فوج کے سربراہ کا عہدہ حاصل کیا۔ وہ فوج کے نئے سربراہ ہوں گے۔ انہیں 15 دسمبر سال 1984 میں ہندوستانی فوج کی جموں کشمیر رائفلز انفینٹری میں کمیشن ملا تھا۔ تقریباً 40 سال کی گران قدر خدمات کے دوران وہ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ جنرل اپیندر دویدی کو پرم وشیشٹ سیوا میڈل اور اتی وشیشٹ سیوا میڈل سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ علامہ ازیں انہیں جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے 3 توصیفی ناموں سے بھی سرفراز کیا گیا ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین اور کامینینی ہاسپٹلز کے زیر اہتمام نامپلی اسمبلی حلقے میں مفت طبی کیمپ کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں عوام نے اس سے استفادہ حاصل کیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین نے کامینینی ہاسپٹلز کے اشتراک سے نامپلی اسمبلی حلقے میں ایک مفت طبی کیمپ منعقد کیا۔ MLA ماجد حسین کی زیر نگرانی آصف نگر کے KHK فنکشن ہال میں لگائے گئے طبی کیمپ سے حلقے کے سینکڑوں لوگوں نے استفادہ حاصل کرتے ہوئے اسے کامیاب بنایا۔ ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم نے لوگوں کی جانچ کی، انہیں مفت ادویات بھی دی گئی۔
भारत राष्ट्र समिति के रुकने असम्बली जगदीश रेड्डी ने बर्फी शोबे की निजीकारी की तरफ कदम उठाने पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासत में किसानों के लिए बिजली सब्सिडी और मुफ्त बिजली की सहूलत दस्तयाब नहीं रहेगी। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने बिजली के बिलों की वसूली की जिम्मेदारी खानगी कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है। साबिक वजीर वसूलियापेट रुकने असम्बली जगदीश रेड्डी ने तेलंगाना भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इल्जाम लगाया है कि बिजली के बिलों की वसूली अडानी के हवाले करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि पूरी रियासत के बिजली के बिलों की वसूली खानगी कंपनियों के हाथों में चली जाएगी। जगदीश रेड्डी ने याद दिलाया कि माजी में केसीआर हुकूमत पर दबाव डाला गया था कि वो बर्फी शोबे को खानगी कंपनियों के हवाले करें, लेकिन केसीआर ने उससे इत्तेफाक नहीं किया था। ताहम मौजूदा चीफ मिनिस्टर मोदी के ज़ेर असर काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी के इस इक़दाम को उन्होंने पुराने शहर के लोगों की तौहीन करार दिया है और मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत बिजली के बिलों की वसूली पर अपने वाज़ेह मौक़िफ़ को पेश करे। हिंदुस्तान में पीर यकम जुलाई से 3 नए फौजदारी क़वानीन नाफिज होंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील M.A. मुजीब के मुताबिक 3 नए क़वानीन के निफाज से मुश्किलात में इजाफा होगा। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल मौसम सरमा के इजलास के दौरान 3 फौजदारी क़वानीन के बिलों को मंजूरी दी थी। कल से यानी 1 जुलाई से ये क़वानीन मुल्क भर में नाफिजुल अमल होंगे, जो कि हिंदुस्तान के फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में जामे तब्दीलियां लाएंगे और नौ आबादियाती दौर का खात्मा कर देंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट के वकील M.A. मुजीब ने इस खुसूस में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि कल से 3 नए क़वानीन नाफिज होने जा रहे हैं, जो कि इंडियन जुडिशल कोड, इंडियन सिविल डिफेंस कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह ले लेंगे। उन्होंने बताया कि इन क़वानीन का निफाज हुकूमत की संजीदगी पर एक सवालिया निशान है, क्योंकि सिर्फ नामों में तब्दीली की गई है जबकि क़वानीन वही हैं। चंद दफात में तब्दीलियां भी की गई हैं, जिनमें पुलिस तहवील की मियाद को बढ़ाना शामिल है, जो कि गैर कानूनी होने के साथ साथ खतरनाक भी है। M.A. मुजीब ने बताया कि तहकीकात करने के मामले में पुलिस को भरपूर आज़ादी दी गई है, जिससे बदउनवानी में इजाफा होगा और बेकसूर लोगों को हरासा किया जाएगा। उन्होंने इन क़वानीन में रद्द-बदल करने और पेचीदगियों को दूर करने पर जोर दिया है। अनीसुल गुरबा की मुकम्मल इमारत को टिमरीज को लीज पर दे दिया गया। गुज़िश्ता BRS हुकूमत और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने यतीम बच्चों का साइबान छीन लिया। इदारा अनीसुल गुरबा वाक़े नामपल्ली सन 1921 में हजरत मीर ख्वाजा बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़ाती मिल्कियत पर कायम किया था। तमाम कानूनी कार्रवाई भी मुकम्मल की गई थी। बाकायदा तौर पर उसे अवाम के लिए वक्फ किया गया था। पुलिस एक्शन यानी सुकूत हैदराबाद के बाद सन 1954 में अनीसुल गुरबा को हुकूमत ने इंडोमेंट के जेर निगरानी दिया। आपको बता दें कि इंडोमेंट महकमे ने 1954 से साल 2009 तक इदारे को मंशा वक्फ के तहत ही चलाया। साल 2009 के बाद इदारे को हुकूमत की जानिब से महकमे अक़लियती बहबूद के हवाले कर दिया गया और फिर इदारे में धांधलियां शुरू हो गई। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए यतीम बच्चों को किस तरह से बेआसरा किया गया है उसकी तफसीलात बताते हुए कहा कि अनीसुल गुरबा 570 गज पर मुश्तमिल था। नई इमारत की तामीर के वक्त 50 गज अराजी सड़क की तोसी की नजर हो गई थी। उन्होंने बताया कि साल 2017 में केसीआर हुकूमत ने इदारे को वसअत देने के लिए हुकूमत की जानिब से 4392 गज अराजी अनीसुल गुरबा के हवाले की और फिर नई इमारत तामीर की गई। बताया गया है कि टिमरीज की दरख्वास्त पर केसीआर ने अनीसुल गुरबा को लीज पर दे दिया। एक माहिदा भी तय पाया। मौलाना सूफी खैरुद्दीन कादरी ने इंकिशाफ किया कि केसीआर के नक्श कदम पर चलते हुए नई हुकूमत यानी कांग्रेस हुकूमत जो कि अक़लियत दोस्त होने का दम भर रही है ने
यकुम अप्रैल साल 2024 में दूसरा माहिदा भी किया, यानी कि वाज़ेह हो चुका है कि साबिक़ा हुकूमत ने जो बददियानती की है, मौजूदा कांग्रेस हुकूमत भी उसी को बरकरार रखे हुए हैं। आपको बता दें कि जो बच्चे कल तक अनीसुल गुरबा के मालिकीन थे, आज वो बच्चे पनागज़ीन बना दिए गए हैं और अनीसुल गुरबा की 7 मंजिला इमारत टिमरीज को दे दी गई है। तीसरी मंजिल पर अनीसुल गुरबा को बराए नाम जगह दी गई है। इतना ही नहीं, अखबारात और न्यूज़ चैनल्स पर 20 तलबा व तालिबात की तस्वीर दिखाते हुए ये दावा किया गया कि अनीसुल गुरबा के बच्चों को नई इमारत में मुंतकिल किया गया है, लेकिन इस खबर में भी कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ एक ही लड़की अनीसुल गुरबा में मौजूद है, बाकी सारे टिमरीज के तलबा व तालिबात हैं। मौलाना सूफी कादरी ने बताया है कि ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, भारत मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस और दीगर तंजीमें ये मुतालबा करती हैं कि फौरी माहिदे को खत्म कर दिया जाए और अगर माहिदा खत्म नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। मेलारदेवपल्ली पुलिस हुदूद में महफिल होटल के करीब एक तेज रफ्तार लॉरी एक दुकान में जा घुसी। इस वाक़े में दुकान के साथ साथ एक कार और ऑटो को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। 2 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार लॉरी इतवार की सपहर महफिल होटल के रूबरू वाक़े मस्कती के आउटलेट में घुस गई, जिसके नतीजे में दुकान का जुज़वी हिस्सा मुनहदम हुआ। एक ऑटो और कार भी इसकी इज्जत में आने के बाद तबाह हो गए। हादसे की इतला मिलने पर मेलारदेवपल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने वहां पहुंचकर तबाहशुदा कार और ऑटो को वहां से हटाया। इस हादसे में जख्मी होने वाले कार ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। बाद ट्रैफिक को बहाल करने के इक़दाम भी किए गए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। रियासत उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड़की के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते देखे जाने पर मेडिकल के तालिबे इल्म को अगवा करने और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड़की के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते देखे गए मेडिकल के तालिबे इल्म आर्यन को न सिर्फ अगवा किया गया बल्कि बुरी तरह से ज़द-को भी किया गया। जराये ने बताया है कि पुलिस ने आर्यन को ब्रिज कुमार निषाद के कब्जे से छुड़ाया और उसकी अहलिया को तहवील में ले लिया है। इतना ही नहीं, निषाद के खिलाफ अगवा और हमला का एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। ब्रिज कुमार निषाद बार एसोसिएशन के जूनियर नायब सदर बताए गए हैं और उनको गिरफ्तार किए जाने के बाद बुकला बरादरी ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए उन्हें रिहा करने का मुतालबा किया है। एहतजाजी बुकला का इल्जाम है कि पुलिस ने आर्यन के खानदान के साथ मिली भगत की और निषाद को बिला जवाज गिरफ्तार किया। साइबराबाद पुलिस ने शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। 262 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। साइबराबाद के कई इलाकों में कल रात हालत नशा में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने मुहिम चलाई। अहदेदारों ने बताया कि
262 अपराध हालत नशा में पाए गए। 191 2 पहियों वाली गाड़ियां चलाने वाले, 11 3 पहियों वाली गाड़ियां चलाने वाले, 56 4 पहियों वाली गाड़ियां चलाने वाले अपराध और 4 भारी गाड़ियों के ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए तमाम लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा। झटपट भी दरगाह वाक़ नामपल्ली का 300वां उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली मोहम्मद सुफियान अली ने मुरासिम संदलमाली अंजाम दिए। झटपट भी दरगाह वाक़ नामपल्ली का सालाना उर्स शरीफ हर साल की तरह इस साल भी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जानिब से दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली मुक़र्रर किए गए मोहम्मद सुफियान अली ने झटपट भी दरगाह के 300वें उर्स के मौके पर मुरासिम संदलमाली अंजाम दिए। दरगाह के केयर टेकर मस्तान के मुताबिक मुजावर फसी अहमद खुद को दरगाह झटपट भी का मुतवल्ली कह रहे हैं। ताहम वक्फ बोर्ड की जानिब से इस तरह का कोई ऐलान न किए जाने पर दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के मुतवल्ली ने ही मुरासिम संदलमाली व दीगर उमूर अंजाम दिए हैं। चूँकि दरगाह हजरत झटपट भी अहाता दरगाह यूसुफैन में ही वाक़ है, हर साल की तरह इस साल भी उर्स शरीफ के मौके पर दूर दराज से ज़ायरीन उर्स तक़ारीब में शिरकत के लिए दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पहुँच रहे हैं। हज का फरीज़ा अदा करने वाले आज़मीन की हिंदुस्तान वापसी का अमल जारी। 15 परवाज़ों के जरिए 4713 आज़मीन हिंदुस्तान पहुंचे। हज की सादत हासिल करने के बाद हुजाज हिंदुस्तान लौट रहे हैं और अब तक 77 परवाज़ों के जरिए 25,000 आज़मीन हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। हुजाज की मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा को रवानगी का सिलसिला भी जारी है। मक्का मुकर्रमा में 96,446 और मदीना मुनव्वरा में 18,499 हुजाज इबादतों में मसरूफ हैं। हुजाज की इमारतों से उनका सामान इकट्ठा कर एयरपोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है ताकि वापसी के दौरान उन्हें किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मक्का मुकर्रमा का दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस तक 45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को ख़र्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website.